So what has happened is that there is an offer that has come from the BJP to the RLD. Just let me quickly give you a brief background. What happened was that our colleagues have been touring Western UP, and they've been filing reports that there's a lot of resentment amongst Jats and Muslims in the SP RLD combine on the type of ticket or who got the tickets. And perhaps sensing an opportunity, the BJP wants to now woo the Jats, the same Jats who were up in arms against the BJP in the farmers' agitation. Amit Shah held a big meeting of Jat leaders at his residence today, in which he was quoted as saying that if RLD, Jayant Chaudhary, who's a prominent Jat leader from Western UP, wants to come and join the BJP, then the doors will always be open for RLD chief Jayant Chaudhary. This was an open offer. Jayant Chaudhary, within minutes, responded and said, "Don't invite me. You don't have to invite me. Invite the farmers' families whose homes you have destroyed." He says, "Don't give invitation to me. Give it to those 700 plus farmer families whose homes you have destroyed." So that's his tweet, which we have put up on the screen right now. So the big question is that who will be able to fix this Jat equation of Western UP, because this is the key. This is the absolute key to winning Western UP. They are 17% of the total vote bank in Western UP. Whichever way they move is going to be very, very critical. Let me introduce Mr. Suren Sharma, National Media in charge of the RLD, and Mahesh Verma, leader of the BJP. Thank you very much to the two of you. We'll begin with you, Mr. Sharma. Offer received, offer denied, all in a matter of minutes. But the point is, I hope you realize that your expectation that the Jats are some monolith who will only be with you and the Samajwadi Party may not be true. Aapne dekha aaj today a big meeting was held in Delhi by Amit Shah of Jat leaders. They too are Jat leaders. जी देखिए, जो आज मीटिंग करी गई है वर्मा जी के घर पे अमित शाह साहब ने, तो वो बिल्कुल ये दर्शाती है कि वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। ना हमारा कोई इनसे समझौता है। हमारा समझौता बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी हमारे नेता की नीति और नियत के साथ इसूज पे हमारा समाजवादी के पर साथ जमीन पे जो लड़ाई हो रही है उसका आप क्या बोलेंगे? हमारे पास कितनी रिपोर्ट्स है मुजफ्फरनगर से, सिवल खास से, अलग अलग जगहों से, जहां पर एसपी और आरएलडी में अंदर ही बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दूसरे से नाराज हैं। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा टिकट बढ़ता है, जब टिकट बढ़ता है तो 10-12 कैंडिडेट हर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे। जब टिकट बढ़ जाता है, टिकट सिर्फ एक कोई मिलता है। वो लोग सब मैनेज हो चुके हैं, वो सब अपने नेता की बात मान चुके हैं। सब लोग तैयार हैं इस समय। कोई लड़ाई नहीं है। There is no division between the Jats and the Muslims in Western UP. मुस्लिम जाट का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो टोटली नहीं मिस्टर शर्मा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं because in 2014, 2017 and 2019 what the BJP managed to do successfully was to slice out the Jats and the Muslims. Jats went to the BJP and that's why they became very, very successful in Western UP. How are you so confident that this time Jats are going to be with you? देखिए, जाट उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा है। मैं संकेत जी अभी भी बता देना चाहता हूं, जाट टोटली 100% गठबंधन के साथ है। उन्होंने अपने नेता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है। वो जो लोग टिकट के टिकटार्थी थे, वो लोग जाट चौधरी जैन जी के पास जाकर उन्होंने हर चीज उनसे तय हो गया है। सो यू आर सेइंग अ माइनर रिजेंटमेंट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया आपने? जी बिल्कुल। ओके, Mahesh Verma, is this a classic case where the BJP is again looking to exploit a fault line? एक आपको रिफ्ट दिखी एसपी और आरएलडी में, मुस्लिम प्लस जाट कंबाइन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तुरंत आप लोग बहुत तेजी से उसको फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इज दिस अ करेक्ट असेसमेंट और नॉट? ये तो अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते भी अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो 8 बार गठबंधन हुआ आरएलडी के डिफरेंट पार्टियों में, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ी उसको सफलता मिली है तो बीजेपी के गठबंधन के साथ ही मिली, जिसमें उसने 5 सीटें जीती 2009 में। अब सवाल यह है कि ऐसे में आज अगर गृह मंत्री जी ने ये बात कही है
कि अगर उनका हमारे साथ गठबंधन होता तो स्वाभाविक रूप से उनके वर्कर, जिनको कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनको लाभ मिल रहा है सरकारी योजना का, उससे वो खुश हैं। और महज कुछ छलावे की वजह से सपा और बसपा का जो और कांग्रेस का आरएलडी का जो है, पिछली बार वो 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, बुरी तरह से हारे, उनके पिताजी हारे, वो हारे। No, that's the point, महेश वर्मा जी। देखिए ऐसा है, उस समय ये जो this caste combination, the Jats very clearly, and we've seen the statistics, were aligned with the BJP. This time around, the problem is the Western UP Jat farmer agitation, और महापंचायत हुई है वहां पर बीजेपी के खिलाफ, जिसमें जाट खाप लीडर्स एंड यू ऑल्सो हैव मुस्लिम खाप लीडर्स, ऑल they gave each other a swear that they are going to not vote for the BJP. आपको लगता है कि वो आपने तोड़ा है या उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? This pact between Muslims and Jats. हम तोड़ने की तो बात कभी नहीं करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम तो ये कह रहे थे कि जयंत जी, अगर आप होते तो शायद और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से भाजपा की जो केंद्र सरकार की जो नहीं, but then if this is seen as a point of weakness, अभी आपको एकदम से आरएलडी की याद आ रही है। उनका तो ये कहना है कि आपकी कमजोरी दर्शाता है, that you are weak and that is why you want the RLD to come. नहीं, ये वीकनेस नहीं है, ये उनको एक तरह से हमने अगर उनसे ये बात कही है कि वो अच्छा होता कि हमारे साथ होते, और हमने ये बात इसलिए भी कही उनसे कि 2009 में हम और वो जब साथ थे तो हमने अच्छा परफॉर्म किया। सुरेंद्र शर्मा, उससे पहले सुरेंद्र शर्मा, योर रिस्पांस। गठबंधन उनका फेल हो रहा। देखिए सर, आज इन्हें किसानों की, जाटों की याद आ रही है। जो किसान 750 लोगों की अपने किसानों को शहादत दे चुका था, तब ये कहां थे? जो किसान 13 महीने बॉर्डर पर गर्मी, बरसात, सर्दी में झेलता रहा, तब ये कहां थे? ये कहां थे तब लखीमपुर खीरी में ट्रेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, अब जीप से उन्हें रोन दिया गया, तब ये कहां थे? तब ये कहां थे जब किसान यूरिया के खाद के लिए लाइन में लग रहा था और उसको दंड? महेश वर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब। डू यू थिंक ये सारी चीजें किसान भूल जाएगा, जाट किसान भूल जाएगा? महेश वर्मा, नहीं, हाँ, केंद्र सरकार ने एक राइटिंग में लिखित में जो है ना, जो 750 किसान है जिनकी मरने की बात कही जा रही है, उसके ऊपर संजीदगी के साथ, पूरे संवेदनशील और जिम्मेवारी के साथ जो है सरकार अपनी भूमिका को अदा करेगी। लेकिन सवाल यह है कि वो दिन कैसे कोई जाट भूल जाएगा? हाँ। जिस दिन सपा सरकार थी और एक मंत्री ये कह रहा था कि तब तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई न करे जब तक ये पूरे जाटों को काट ना दे। तो सवाल यह है कि जाट क्या उन दंगों को, दर्दों को? No, again, see, my point is, Mr. Mahesh Verma, that is the deadly cocktail for Western UP. यहाँ पर जाट इक्वेशन भी एक्सप्लॉइट की जाएगी. There will be temple issues also. You've got Mr. Amit Shah going to Mathura and Vrindavan tomorrow, and also a reminder of the riots of 2013. This cocktail, political cocktail, is being offered for Western UP. संकेत जी, जिसमें लोगों की आस्था है, जिसमें विश्वास है, अगर उस विश्वास के ऊपर कहीं पर राइट्स का क्या बार बार याद दिलाना? बिल्कुल याद दिलाना चाहिए। अगर कोई सरकार ने इस तरह के दुर्दांत काम किए हैं, इस तरह के कारनामों का अंजाम दिया है, और उसके मंत्री फोन करके वो रिकॉर्डिंग है, और वो उसमें let's just see whether that works for you or not, because in the Mahapanchayats, thank you very much Mr. Sharma as well as Mr. Verma, in the Mahapanchayats that were held after the farm agitation, all the farmers and all the Khaps said that this time around we will not be divided along communal lines. Will the farmers, the Jats particularly, forget those promises, and will the BJP be successful in bringing them on their side? That's the big question. Good night and goodbye.